کہتے ہیں جب عید کا تیسرا دن دوار ذی الحجہ جمعہ مبارک کا دن آ جائے تو پھر جو شخص بھی انا آتیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے وہ اسی بابرکت دن ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آج کے دن ہی اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج دوار ذی الحجہ جمعہ مبارک یہ عید الاضحیٰ کے ایام کا سب سے عظیم عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کا سردار دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بخشش کا دن ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جن کے دلوں میں کسی کے لیے کینہ یا حسد نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، کیونکہ یہ صلح، معافی اور قرب الہی کا بہترین دن ہوتا ہے، اس دن پہاڑوں جیسی بڑی مشکلیں بھی اس عمل کی برکت سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ عمل کا طریقہ اب آپ نے ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آج دوارہ ذی الحجہ ہے تو آپ نے دوارہ مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پاک، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی خاص تاکید ہے کیونکہ یہ درود براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عبادت کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دن اگر آپ پاکیزگی کے ساتھ مساجد کے قریب یا گھر میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں تو ہر دعا قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو شخص اس دن نیک کام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آج دو ذی الحجہ دوسرے جمعہ مبارک کے اس خاص دن آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے، تو اسے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے ابتدا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے نیت کر لینی ہے اپنی مشکل، حاجت، پریشانی، پیسوں کی ضرورت، شادی کا مسئلہ جو بھی ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی والدین ہے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے کسی بھی مقصد میں کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اسی طرح جب آپ نیت کر کے اس عمل کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ انما الاعمال بالنیت، تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، تو کوئی بھی عمل نیت کے بغیر دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو نیت کے ساتھ مناسک ہیں۔ نیت کے بغیر بات نہیں بنتی جب تک آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھ نہیں لیتے۔ دیکھیں، میں اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک جوز، ایک ایک حصہ اس لیے آپ کو بتا اور سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ عام وظائف کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک خاص روحانی طاقت ہے، اس کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے جمعرات کے دن کی، پھر عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی نسبت حاصل ہے۔ تو اب آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے جو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کلام کرے۔ کوشش کریں ایسی تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ کسی بزرگ کا مزار مل جائے تو اس کے وہاں پر بیٹھ کر عمل کرنے کی ایک الگ ہی تاثیر ہوگی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن باوضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہیں۔ ایک تو اس عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنی، بالکل جو چیز پہلے بتائی جائے، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم صورت سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل انتہائی شاندار ہے۔ جس صورت کے ذریعے آپ نے عمل کا آغاز کر رہے ہیں، درود پاک اور تعوذ سے آپ نے پڑھ لیا، اب عمل کے اندر کی خاص چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی روح ہے، تو جو قرآن کی روح ہو اس سے انسان کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہو،
उस सूरत की एक अलग शान है, उसकी एक अलग अज़मत है। इसलिए मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो सूरत है ना, देखने में एक छोटी-सी है, ऐसी सूरत जो कुरान के तिहाई के बराबर है। जी हाँ, ये अज़ीम सूरत कुरान मजीद की सूरतुल इखलास है और इसके हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं, पढ़ने के रूहानी फ़ायदे कितने हैं। एक दो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं, क्योंकि अब वो राज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो राज बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं अर्ज कर दूं कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिए, क्योंकि आखिर में एक ख़ास बात बताऊंगा जो हर एक के लिए जानना ज़रूरी है। जो लोग आमाल और वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती, परेशान हाल रहते हैं कि अब क्या करें, किधर जाएं, तो उनके लिए ये एक ऐसा शानदार अमल है कि जिनके में वज़ाइफ काम नहीं करते, वो लोग जब इस अमल को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं, रुके हुए काम जो है होना शुरू हो जाते हैं। अब इसलिए कि हुजूर अली अस्सलात वसलाम का फरमान भी है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत कुरान करीम के एक तिहाई के बराबर है। यानी अगर कोई शख्स इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ता है, तो गोया पूरे कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह ताला इस बंदे को सवाब अता फरमाता है। अल्लाह की मोहब्बत हासिल कराने वाली ये सूरत, एक सहाबी हर नमाज इस सूरत की तिलावत करते थे। जब ये बात पूछी गई, हुजूर की बारगाह में शिकायत की गई, तो हुजूर ने उसे बुलाया, फरमाया, तुम्हारी शिकायत हुई है कि तुम हर नमाज में ये एक ही सूरत पढ़ते हो। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, असल मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं। नबी अलैहिस्सलावत वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। अब फ़कत तिती बार आपने पढ़नी है, और ये तस्बीह फ़ातिमा जो हम पढ़ते हैं ना, उसकी तादाद भी त्रिती बार है। ये तादाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 33 टाइम का अदद दिया। अब आपने इस सूरत ए मुबारका को हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर, जिस पर चाहे, आप इसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और बड़े ही तहम्मुल के साथ, बड़ी बर्दबारी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। और फिर क्योंकि देखें, सिर्फ चंद सेकंड की तिलावत और बदले में जन्नत में घर, तो ये कितना अजीम सूरत है। क्योंकि हदीस पाक में आता है, जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह उसके बदले उसे जन्नत में घर अता फरमाता है, जन्नत में उसका घर बनता चला जाता है। इसलिए कि ये अमल नज़र से, जादू से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की हाजत के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, अब दुनिया के जिस कोने में भी आबाद हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, कनाडा में, जहाँ जहाँ कहीं भी भाईजान आप इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ना दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, बस आपका काम है कि आज के दिन इस अमल को पढ़ लेना। फिर देखिएगा, तुम्हें किसी अमल के पढ़ने की ज़रूरत और हाजत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये अमल आपको हर अमल से बेनियाज कर देगा। क्योंकि अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है, तो रिज़्क में इतनी बरकत आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। माली परेशानियाँ, माली मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अगर किसी के दिल में नफ़रत हो, दूरी हो, इसको पढ़कर वो दुआ करे, तो उसके दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी उसकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया जाता है। एक बड़ा शानदार वाक़या कि एक शख्स बहुत गरीब था, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था, हमेशा परेशान रहता था। किसी नेक शख्स ने उसे मशवरा दिया कि भाई, इस सूरत मुबारका की तिलावत करो। चंद दिन पढ़ा तो उसके हालात बदल गए, रिस्क खुल गया, दिल को सुकून आ गया, मुश्किलात उसके ज़रिए हल हो जाती हैं। इसको मुश्किल कुशा भी कह रहे हैं, इसलिए कि जब आप इस सूरत मुबारका की तिलावत करेंगे तो हैरत अंगेज़ नताइज पाएंगे। क्योंकि जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए कब्र को रोशन कर देता है, तो क़यामत के दिन भी इसके पढ़ने वाले को ख़ास मुकाम मिलेगा, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। कुरान के तिहाई के बराबर जन्नत में घर, हिफाजत, सुकून, रिस्क में बरकत, और भी इसके, क्योंकि देखें, एक आदमी का इंतकाल हुआ, जब उसे दफन किया गया तो कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा उसकी कब्र नूर से भरी है। वजह पूछी गई तो बताया, यही सूरत वो है जिसकी ये तिलावत किया करता था। बस उसकी तिलावत ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, उसकी कब्र को बदल दिया है। एक शख्स बार बार इस सूरत को तिलावत करता था, तो जब इस सूरत की तिलावत करता था, वो बहुत परेशानी में मुब्तला था, कर्जे में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने बताया था, कभी इस सूरत की तिलावत करके देखो। उसने पढ़ी तो कर्जा भी उतर गया, रिज्क के दरवाजे भी खुल गए, दिल को सुकून भी आ गया, और भी बहुत सारे मामलात उसके हल हो गए। एक गरीब आदमी ने अहद किया कि वो इस सूरत को पढ़ेगा। चंद हफ्ते पढ़ा तो कारोबार में तरक्की आ गई, घर के देखते ही देखते हालात बदल गए। हर कोई उसका रिश्तेदार तज्जुब में पड़ गया कि भाई, उसके हाथ में ऐसा क्या लगा है कि उसकी ज़िंदगी तो एक कामयाब ज़िंदगी बन गई है।
तो दोस्तों, इसलिए जो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है, तो वो इसको पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में कामयाबियों की राहें हमवार हो जाएंगी। उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अब ये सूरत पढ़ने के बाद आगे जो सूरत पढ़नी है, वो सूरतुल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आर्तैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वानहर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। तो अब ये सूरत भी बड़ी मुख्तसर है, इसलिए कि इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने कुर्बानी का जिक्र, तो ये महीना भी कुर्बानी वाला, ये दिन भी कुर्बानी वाला, तो ये सूरत भी जिसके अंदर हुक्म दिया गया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इसलिए आज इस सूरत को जब कोई बंदा पढ़ता है तो उसके लिए राहें खुलती चली जाती हैं, उसके लिए मामलात हल होते चले जाते हैं। और इसलिए कि अब आपने इस सूरत मुबारका की तिलावत को, पहली जो सूरत आपने पढ़ी उसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीमी के साथ पढ़ा, और इस सूरत को भी आपने कोशिश करनी है कि शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह, बाकी बगैर बिस्मिल्लाह के। पहली सूरत का भी यही तरीका है और इस सूरत मुबारका का भी यही तरीका है, यानी शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बगैर बिस्मिल्लाह के भी इस सूरत को पढ़ते जाएंगे। इसी तरह दूसरी सूरत जो आपको अर्ज की है, उसका भी यही तरीका कार होगा। आप इसकी तादाद की बात कर लें तो तादाद भी इसकी बड़ी मुख्तसर सी है, क्योंकि अमल बड़ा शानदार है लेकिन मुख्तसर है। लेकिन इस अमल का कोई दूसरा अमल आप देखेंगे, आसानी नहीं होगा। आपने बड़े बड़े वज़ाइफ किए होंगे। आप यकीन जानिए, जब ये अमल पढ़ेंगे तो खुशी से मसरूत हो जाएंगे कि हमें एक ऐसा अमल मिला है जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल गई है, जिसके ज़रिए हमारे हालात बदल गए हैं। और वाकई ही ये हालात बदल देने वाला अमल जिसने पढ़ा है, उसकी ज़िंदगी में एक इनकिलाब बरपा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी आई है कि जिसने उसका सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो अब दोस्तों, जब आपने, क्योंकि देखें, एक बीमार शख्स ने जुमेरात के दिन ये कलिमात पढ़े तो वो बीमार था ना, उसे अल्लाह तबारक व ताला ने फ़ौरन सेहत अता कर दी। तो इसलिए एक तालिब इल्म था जिसने इस दिन में ही अल्लाह की इबादत की थी, चंद बार ये कलिमात पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस नौजवान को जिसने ये पढ़ा था, अल्लाह ताला ने उसे इम्तिहान के अंदर कामयाबी और उरूज अता कर दी। तो इसलिए ये कितना कमाल का अमल है कि जिसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें हमें नसीब होती हैं। तो हमने इसी तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ना होगा ताकि हमें अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और उसका फ़ज़ल नसीब हो जाए। तो अब आपने ये सूरत जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की है, इस सूरत मुबारका को भी फ़कत आपने इतनी बार ही पढ़ना है, यानी 3 बार पढ़ेंगे। तो जब 3 बार इस सूरत मुबारका को पढ़ेंगे तो इसके बाद आगे चंद और चीज़ें भी आपने पढ़नी हैं जो इंतहाई शानदार हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इसी अमल का हिस्सा है। तो आप इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि देखें, ये जो चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हर कोई नहीं आपको बताएगा। ये एक सीने का राज है जो आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए इस राज को समझिएगा, इसे ज़ाय मत कीजिएगा। इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। और आज हमारी एक खुसूसी दुआ है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 बार वो दरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें। इंशाअल्लाह उनको दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो ये दुआओं में लोग बड़े शामिल होते हैं। हर साल ईद के दिन भी दुआ की थी, और आप देख लें, इससे पहले जो वीडियो की, उसके नीचे कितने लोगों के कमेंट आए, अब वो लोग बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी फ़ायदा हासिल करना चाहें, देखें, जहाँ सारे आमाल और वज़ाइफ रुक जाते हैं, वहाँ दुआ असर कर जाती है, वहाँ दुआ के कमालात आप देखते हैं। क्योंकि जो शख्स मुश्किल में इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। जो बंद दरवाजे, जो समझता है मेरी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वो इसको पढ़ता है तो किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। और जो गम में पड़ता है, गम खत्म हो जाता है। जो परेशानी में पड़ता है, परेशानी खत्म हो जाती है। जो खौफ में पड़ता है, खौफ खत्म हो जाता है। जिसको वसवसे आते हैं, उसे वसवसों से नजात मिल जाती है। इससे रूहानी फ़ायदा भी होता है, इससे जिस्मानी फ़ायदा भी होता है। तंगी ख़त्म होती है, मोहताजी दूर होती है। ये अल्लाह का वादा है। इस्लाम के दुश्मन जलील होंगे, हक हमेशा गालिब रहेगा। इसलिए कुर्बानी तकवा की निशानी है। अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी कभी भी ज़ाय नहीं होती। इसलिए अब कुर्बानी हम कर चुके, और बहुत सारे दोस्त आज भी करेंगे। तो इसलिए आज उन दिनों में इस अमल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस कदर आपको अल्लाह ताला की बारगाह से इनामात मिलते हैं। तो अब आपने इस सूरत मुबारका के पढ़ने के बाद इसकी तादाद भी मैंने अर्ज़ की है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बाकी आप इसे बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ते जाएं। लेकिन अव्वल व आखिर जो तादाद दरूद पाक की बताई है,
वो कोई भी दरूद पाक आपने उतनी तादाद में ज़रूर पढ़ना है। अब आपको वो कलिमात बताने लगा हूँ जो बड़े महबूब हैं अल्लाह तबारक व तआला को, यकीन जानिए जिसे पढ़ने से आपको खुद लुत्फ़ आएगा। आपको खुद एक सुकून मैसर होगा, क्योंकि ये कलिमात कुरान मजीद में से हैं। यूँ कहना है, या रबनाए हमारे रब, कितना प्यारा जुमला है। ई हमारे रब, ई हमारे रब, यानी ये आजिज़ी से भरपूर और मोहब्बत वाले अल्फाज हैं। और ये वो पुकार है जो बंदे के दिल की गहराइयों से निकलती है, जिसमें आजिज़ी भी है, उम्मीद भी है, मोहब्बत भी है, मुकम्मल भरोसा भी है। कुरान मजीद में अंबियाए किराम, सहाबा, सालिहीन की दुआएं अक्सर इसी अल्फाज से शुरू होती हैं, यानी पैदा करने वाला, पालने वाला, संवारने वाला, तरबियत करने वाला। इसलिए कि इस बात का ऐलान है, अल्लाह हम तेरे हैं, तू हमारा है। जब बंदा इस तरह अपने रब को पुकारता है, इस तरह कहता है, तो फरमाया कि उसी वक्त फिर अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये दुआएं हमें सिखाती हैं ना कि अल्लाह से कैसे मांगा जाता है। आजिज़ी की अलामत है, कबूलियत का ज़रिया है, अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। ये लफ्ज़ खुद दुआ के आदाब सिखाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, सब ने अपनी दुआओं में ये साबित किया है कि ये अल्फाज कहे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये सबसे महबूब अंदाज़ है। इसलिए हम कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये दुआ हमें सिखाती है गुनाह के बाद अल्लाह को रब कहकर पुकारना। ये मगफ़िरत का दरवाज़ा खोल देता है। कभी कभी इंसान के पास अल्फाज नहीं होते, बस दिल से निकलता है या रब्बना, तो ये पुकार अल्लाह ताला तक ज़रूर पहुँचती है। रास्ते बंद हो जाएं, लोग तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, अक्ल जवाब दे गई है, तो बस कह दे या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ये कहना तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। बस आज का दिन, लम्हा जो है, आज का दिन जो है, उसको ज़ाय किए बगैर इस इबादत को ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ, कुछ और कर सकें न कर सकें, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि वाकई ही कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी ताकत बड़ी बड़ी दीवारों को हिला देती है, पहाड़ों को हटा देती है और रास्ते के बंद तोड़ देती है। और इसलिए कि ये अल्फाज कहने वाला आखिरत में भी रब को पहचान लेगा। जो रब को पहचान लेगा वो निजात पा जाएगा। तो ये 30 बार आपने पढ़ने हैं। इसके बाद आगे जो कलिमात आपको बताना चाहता हूँ, वो भी इंतहाई शानदार हैं। इतने शानदार कि जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ही ये अमल आज का वो ख़ास अमल है, जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए, जिससे आपके हालात बदल जाएं, जिससे आपके लिए राहें खुल जाएं, जिससे कर्ज़े उतर जाएं, जिससे बेघरों को घर मिल जाएं, जिससे मकरूज़ों को कर्जे से निजात मिल जाए, तंगदस्तों की तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएं। जो रिज़्क़ के हलाल चाहते हैं, देखें इंसान के पास जो कुछ भी है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद बरकतें आ जाएं, इसमें मज़ीद अल्लाह ताला की रहमतें शामिल हो जाएं, माली रुकावटें ख़त्म हो जाएं, कर्ज उतर जाएं, बरकतें नसीब हो जाएं, तो बस आप पढ़ते जाएं और फिर देखते जाएं। जो तालिबे इल्म, असातिज़ा इल्म के मुतलाशी भी पढ़े तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनके जहन खुल जाते हैं, बात समझ में आती है, याददाश्त बढ़ जाती है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आप यूँ कहें, या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़। जो आज का अदद है, ये बड़ा शानदार है। ये इतना शानदार है आज का दिन, क्योंकि रिज़्क ये पढ़ने वाला कभी भी मोहताज नहीं होगा। आप अगर मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बस आज समझ लो आपकी परेशानियों का खात्मा होने वाला है, आपके लिए राहें खुलने वाली हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। क्योंकि मेरा रब जिसके लिए चाहता है, जो चाहता है, वो जब चाहता है कर देता है। लेकिन जब कोई इस सूरत की तिलावत करता है तो अल्लाह उसे मालामाल कर देता है। तो अब आपने माद भी फ़कत 33 बार पढ़ने हैं, क्योंकि 33 का अदद इंतहाई शानदार है, इंतहाई कमाल का है। तो ये पढ़ने के बाद आखिरी चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गान दीन का ये तरीक़ा ए कार रहा है। तो अब ये जो आखिरी चीज़ बताने लगा हूँ, इसके बाद इसको भी आपने 30 बार पढ़ना है। इसके बाद दरूद ए पाक पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह के हुज़ूर बैठ कर दुआ करनी है। मालिक ए खल्क, राज़िक जो आप तलब करना है, 3 मरतबा दुआ के अंदर भी अपनी हाजत को तलब करना है, ताकि आपकी हर हाजत पूरी हो, आपकी हर मुश्किल आसान हो, आपके लिए तमाम राहें खुल जाएं। अब जो कलिमात आपको बताना चाहता हूँ, कहते हैं ये दिल को पाक कर देते हैं, ये रूह को ताजगी बख्श देते हैं। जब इंसान गुनाहों में मुब्तिला हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है और ये उसकी सख्ती को नरम कर देता है। जो इखलास के साथ पढ़े, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, चाहे वो कितने ही ज़्यादा क्यों न हों। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। ये सूरत नूह में मौजूद है।
اور ایک شخص بڑا غریب تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا۔ ایک شخص وہ اس وجہ سے پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، تو اس نے پڑھا، اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔